So what is the next part? Next part we'll be doing the application of integration, differentiation and integration that already we have learned in maths in physics chapter. So this is the first place where we are going to use the application of differentiation in physics exhaustively. उसके लिए आई थिंक लास्ट डे मैंने कहा था कि एक बार रिवाइज करके आना है, सबने किया होगा रिवीजन, एंड नहीं है तो विल बी डूइंग हियर. ओके, द बेसिक फॉर्मूला सबको याद होगा. So here, if the heading electric field due to continuous charge object, if the heading electric field due to continuous charge object, continuous charge object. अभी तक हम लोगों ने क्या किया था? अभी तक हम लोगों ने डिस्क्रीट चार्ज ऑब्जेक्ट के लिए किया था. डिस्क्रीट मीन्स क्या था? यू हैड charge here, let's say charge was here q1, q2, q3, and due to these charges we want to find electric field at point P. So we had q1, q2, q3, and due to these charges we have to find electric field at point P. These charges are point charge. So point charge hai, so due to this the electric field, again positive point charge है, तो electric field is radially away. This is E3. Q2 के कारण it is like this. E1 due to Q2 it is like this. E2. It is in a vector form. So what we had done, then we have taken the component and we have solved it. Electric field is a vector quantity, so we have taken the component and we have solved it. देखो ये. But now we are going for continuous charge object. Electric field due to continuous charged object. तो ये object है. It's not a point charge. This is object. Object है means this means you cannot apply the electric field due to a point charge. Let's say point charge Q1 है. Due to this at a point P, electric field is K Q1 by R square. Or let's say K Q by R square. This is the electric field due to point charge. But now we are, but here we are dealing with a continuous charge object. This point is very important. Continuous charge object. What is the meaning of continuous charge object? And यही अपने को physics में सीखना है. And this will be by the help of integration and differentiation. जैसे मान लो कि एक मैंने रॉड लिया. Let's say ये रॉड लिया मैंने. Due to this rod, अभी इस पे मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है. Continuous distribution of charge on this rod. And let's say due to this rod, I want to find electric field at here और यहाँ पे, मतलब here, anywhere in the space. So if you want to find electric field at any point, let's say इस rod पे charge Q है, इसका length L है. So here now let's say if we have here, I've taken like this, we have a rod का length दिया हुआ है, this is L, और इस पे charge मैंने somehow इस पे distribute किया है K, Q, and I want a electric field at point P. Here, point P का
ये दिया हुआ है, इट इज डिस्टेंस a फ्रॉम वन एंड, ये अपने को दिया हुआ है। So for this case, we cannot write that electric field, since it's the positive charge, so electric field will be radially away. ठीक है, direction is okay, but what about the magnitude? So magnitude we cannot write kq by let's say a square या फिर l plus a square, और किसने लिख दिया kq by l plus a square, तो ये लिख नहीं सकते हम लोग, because this kq by r square is for a point charge. दिस इज नॉट अ पॉइंट, ये रॉड है, रॉड में देखो यहाँ पे दिस रॉड इज मेड अप ऑफ मेनी पॉइंट्स टुगेदर हैज बिकम अ रॉड. तो वी कैनॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर दिस रॉड. So that is the object we are talking of. So that kind of, we are going to discuss that kind of electric field. उस केस में कैसे फाइंड करेंगे. और देखो यहाँ पे वर्ड यूज किया है कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस मीन्स चार्ज हर एक जगह, ऐसा नहीं है कि चार्ज यहाँ पे है फिर इधर है फिर यहाँ पे, ऐसा नहीं है. थ्रू आउट द रॉड चार्ज इज एवरीवेयर. चार्ज यहाँ पे चार्ज है, फिर उसके जस्ट बगल में चार्ज है, उसके जस्ट बगल में चार्ज है, बगल में चार्ज है, लाइक दिस. तो चार्ज इज एवरीवेयर. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस. We use the word continuous because charge is everywhere. Charge is everywhere. Charge. Discrete means क्या हुआ कि चार्ज इस पॉइंट पे है, फिर इस पॉइंट पे है, फिर इस पॉइंट पे है, तो उनके बीच कुछ कनेक्शन नहीं है. जैसे यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे Q1, फिर Q2 यहाँ पे, फिर Q3 यहाँ पे. So if you have to go from Q1 to Q2, you have to lift the tip of pen to go from Q1 to Q2. But here, if you have to go from here to here, you don't have to lift the tip of pen. You will go continuously from one end to second end. So that kind of distribution is known as continuous charge distribution. That kind of distribution is known as continuous charge distribution. Okay, everyone? Yes, sir. देखना. Okay, so that kind of known as continuous. So we are going for this because for discrete charge we can find easily. For discrete charge distribution where different point charges are placed at different point, for that we can find very easily by the application of electric field due to point charge. But what about the discrete charge? What about the continuous charge object? उसमें हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो हम लोग इसमें बात करने वाले हैं. तो क्लियर है आज का हम लोग क्या करने वाले हैं एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये ड्रॉ करना है तो करो, अदरवाइज आई विल रिमूव इट. सर, हाँ, सर ये केस में जैसे वो जो क्यू चार्ज है इसकी लेंथ है, उसमें सारे पॉजिटिव चार्जेस है, तो सर ऐसा भी एक केस होगा ना इसमें कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे वो लेंथ के अंदर. हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल. पर उसका निकालने का फिर फॉर्मूला है कि वो कंडीशन है. तो पहले ये तो सीख लें, फिर उसके बाद उस पे आ जाएंगे. सर, पहले से. हाँ, सर पर जैसे आपने पहले लेक्चर में बताया था अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा तो फिर वो चार्ज के बाद में कैसे बिहेव करेगा वो मतलब ये नहीं कर सकते, सर्टन नहीं कर सकते. नहीं क्या, फिर से बोलो. अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो चार्ज होने के बाद कैसे बिहेव करेगा वो असर्टन नहीं कर सकते.
नहीं, वो तो कर सकते हैं ना, अगर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे चार्ज है उनको पास में लाया तब फिर अलग होता है ना। अगर यहाँ पे देखो जो इंडक्शन है, अगर ये एक स्फीयर है, इस पे तुमने चार्ज दिया तो चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ये तुम्हारा कंडक्टिंग स्फीयर है तो अगर तुमने चार्ज इस पे डेवलप किया तो इट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। इसके पास में अगर तुमने कोई दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट लाया देन दिस वॉन्ट बी कंटिन्यूअस। ओके सर। जब तक ये अकेला है तब तक उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। ओके सर, समझ गया। ठीक है, फिर तो नो, देखो इसमें कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, तो स्टैंडर्ड स्टेप्स है वही अपने को फॉलो करना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यहाँ पे स्टेप 1 लिखो। स्टेप 1, identify the type of charge distribution. Identify the type of charge distribution identify the type of charge distribution and compute the charge densities. And compute the charge density. Sir, can you please repeat? Identify the type of charge distribution. Step 1. And compute the charge densities. देखो अभी किस किस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा देखना। तो फिजिक्स में काफी सर्टेन होता है, ओके, फिक्स रहता है किस टाइप का रहेगा, उसमें कुछ अलग नहीं रहता। ठीक है, तो जैसे भी मान लो स्टेप 1 में तुमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करना है। मीन्स व्हाट, लेट्स से जैसे भी कौन कौन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, तो देखो फर्स्ट होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स व्हाट कि लेंथ के अलोंग चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ। क्या होगा, जैसे तुमने वायर ले लिया, तुमने रॉड ले लिया, तो देखो जैसे अभी इसमें किस किस टाइप का शेप आएगा। जैसे ये रॉड हो गया, रॉड को मैंने चार्ज दिया, ठीक है, तो चार्ज में देखो लेंथ के अलोंग चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मान लो कि इसमें टोटल चार्ज इस पे क्यू दिया है, लेंथ इज एल, तो एल लेंथ पे चार्ज क्यू दिया है। रिमेंबर इसका थिकनेस है, ठीक है ना, लेकिन फॉर कैलकुलेशन पर्पस वी आर सेइंग इट इज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज एंड मास आर टू फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। जहां पे मास है, जहां पे चार्ज है, वहां पे वॉल्यूम होगा, वहां पे लेंथ हो नहीं सकता। बट फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन वी आर
सेइंग इट इज अलोंग द, जैसे इसका है तो देखो इसका कुछ थिकनेस है, जैसे ये हो गया तो इसका कुछ थिकनेस है, लेकिन लेंथ इज मच मोर सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू थिकनेस, so that's why we say it's a linear charge distribution. समझ रहे सबको? चार्ज हमेशा वॉल्यूम में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन जब अपने को कैलकुलेशन करना होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होता है, देन वी गो फॉर सम काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन। वही यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। वही हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ। थिकनेस है, बट थिकनेस इज मच मोर negligible as compared to the length of the rod. Clear है everyone? Yes. जैसे ये हो गया, rod हो गया, मान लो एक तुमने वायर लिया इस फॉर्म में, आर्क के फॉर्म में, यहाँ भी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हम लोगों ने। ये आर्क के फॉर्म में मैंने वायर ले लिया, तो इसका रेडियस r है, दिस इज थीटा, चार्ज q है, तो लेंथ के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही लूंगा, या फिर सर्कुलर वायर हो गया। देखो ये ऐसा वायर का दोनों एंड ज्वाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ। वायर का देखना थिकनेस कुछ ना कुछ होता है, लेकिन फॉर कैलकुलेशन पर्पस वी आर टेकिंग दिस इज रेडियस इज आर, चार्ज इज क्यू। तो ये सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है दे आर अलोंग द लेंथ। हम लोग वायर को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक अ वायर। मैंने यहाँ पे रॉड दिखाया, रॉड को हम लोग वायर से भी रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं ऐसा। इसको चार्ज दिया Q, कर दो Q, this length is L. So all these are charge distribution of linear type. Linear means charge is distributed along the length, but always keep in mind लेंथ के along इसका मतलब ये नहीं कि उसका वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम है, थिकनेस है, बट थिकनेस इज वेरी नेग्लिजिबल। फॉर कैलकुलेशन पर्पस वी आर नेग्लेक्टिंग दैट। क्लियर है एवरीवन? हाँ सर। देखो हम लोग फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन का यूज करने जा रहे हैं इन फिजिक्स। अभी तक हम लोगों ने किया, हम लोगों ने मैथ्स इन फिजिक्स में सीखा था, तो यहाँ पे एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, उसका यूज करेंगे। तो प्लीज, और टोटल 6 टाइम्स इन फिजिक्स वी आर गोइंग टू फॉलो द इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, और यही शेप बार बार रिपीट होगा, कुछ न्यू शेप नहीं आएगा, यही शेप बार 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 रिपीट होगा। तो यही मेथड हम लोग आगे के भी चैप्टर्स में फॉलो करने वाले हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। और आई एम गोइंग स्लो, कुछ क्वेश्चन हो यू कैन आस्क। मेथड मैथ्स है, इनिशियल पार्ट इज फिजिक्स, उसके बाद मैथ्स आ जाएगा। मैथ्स में तुमको इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग वही सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुमको पहला क्या था स्टेप, कि आइडेंटिफाई द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देन कैलकुलेट द चार्ज डेंसिटी। देखो जो नेक्स्ट वर्ड था, आइडेंटिफाई द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेट द चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी देखो लीनियर है, तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी आता है, चार्ज डेंसिटी, एंड वी रिप्रेजेंट बाय लैम्डा। देखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी रिप्रेजेंट बाय लैम्डा।
मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। देखो ये दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी वर्ड यूज कर रहे हैं तो डेंसिटी जो तुमने 9th 10th तक यूज किया है मास बाय वॉल्यूम, लेकिन देखो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने वर्ड यूज किया है। लीनियर मतलब लेंथ, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके Yes, sir. So density Review. and distribution is same. डिस्ट्रीब्यूशन मींस लेंथ के अलोंग चार्ज को मैंने रखा है, डेंसिटी मतलब चार्ज बाय लेंथ। So the same ही है ना. सेम चार्ज डेंसिटी मतलब हो गया चार्ज बाय लेंथ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मींस लेंथ के अलोंग चार्ज को हमने रखा है। हाँ तो सेम ही है, लेकिन हम लोग ये कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं ना। Okay, okay, sir. ये डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है चार्ज को लेंथ के अलोंग। यहाँ पे डेंसिटी निकाल रहे हैं कि यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी वी रिप्रेजेंट बाय लैम्डा। वैसे ही तुम जब आगे आओगे तो वहां पे लीनियर मास डेंसिटी आ जाएगा। जस्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। ठीक है ये, तो वैसे ही जब तुम आगे आओगे तो यहाँ पे तुमको आ जाएगा लीनियर मास डेंसिटी। तो उसके लिए भी हम लोग लैम्डा ही यूज हम लोग करने वाले हैं, सिंबल। तो ये मैं अभी हम लोग इसके लिए कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आगे के लिए भी कर रहे हैं हम लोग। हम लोग ये आगे के लिए भी कर रहे हैं कि मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ। ओके तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास बाई लेंथ आ जाएगा। तो तुमको इतना ही आना, चार्ज डेंसिटी और मास डेंसिटी, यही तुमको दो आने वाला है। देखो तो क्लियर है सबको। हाँ सर। Yes, sir. तो देखो यहाँ पे मैंने जो ऊपर कुछ शेप ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे लैम्डा क्या आ जाएगा, यहाँ पे लैम्डा बताओ इस केस में, इस केस में, Q इस by L. केस में। तो लैम्डा विल बी Q बाई L। यहाँ पे लैम्डा बताओ क्या हो जाएगा, लिखो P यहाँ by पे R लिखो lambda क्या हो जाएगा। हाँ बताओ, Q बाई R theta. R थीटा। थीटा किस में होगा, डिग्री में, ग्रेड Meters. Radian. में होगा। रेडियन अच्छा Right. ठीक है हाँ. रेडियन में होगा, करेक्ट। यहाँ पे लैम्डा सर क्यू बाय 2 पाई और आर। केस, राइट। देखो सर, तो देखो मैंने 3 केसेस में लीनियर चार्ज डेंसिटी लिख दिया हम लोगों ने। ये फर्स्ट टाइप ऑफ शेप हुआ। ओके
सेकेंड टाइप बी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंड टाइप ऑफ जो शेप आएगा तुम लोगों को, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे क्या क्या शेप आ जाएगा, तो जैसे मान लो कि एक डिस्क हो गया, ये डिस्क पे तुमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। प्लेट, जिस प्लेट में तुम खाना खाते हो, देखो इसका रेडियस आर है और इस पे चार्ज दिया है मैंने क्यू। सेकेंड स्फीयर हो गया, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। हॉलो स्फीयर मतलब जो, देखो इस तरह का बॉल जो हो गया, टेबल टेनिस बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, दे आर, इसके अंदर में क्या है, हवा है, सिर्फ उस सरफेस पे ही चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट हम लोग कर सकते, बिकॉज अंदर में कुछ है ही नहीं। तो उसको हम लोग ऐसे कर रहे हैं रिप्रेजेंट, हॉलो स्फीयर। इसको और थोड़ा सा तुमको ये करना है, तो देखो ये ऐसा, इट्स अ 3 डायमेंशन। 3D को 2D में ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये देखो, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ओनली, अंदर में कोई चार्ज नहीं है। यहाँ भी चार्ज क्यू है, रेडियस इसका आर है, सरफेस। तो आ रहा है समझ में, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Sir, can you repeat it once? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एरिया वाइज, मीन्स चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एरिया। और एरिया किसके लिए होता है, सरफेस के लिए होता है। जैसे एक प्लेट हो गया, जिस प्लेट में तुम खाना खाते हो, देखना तो वो प्लेट तुम प्लेट में रख के खाना खाते हो, तो योर फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेट, तो दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे चार्ज का है तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे ही हॉलो स्फीयर हो गया। हॉलो स्फीयर मतलब जैसे ये टीटी बॉल हो गया, टीटी बॉल के अंदर में हवा रहता है, सिर्फ सरफेस पे ही ये, तो चार्ज सिर्फ सरफेस पे आएगा, बिकॉज अंदर में हवा है, तो चार्ज विल बी ओनली ऑन द सरफेस। टीटी हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, सर फुटबॉल हो मतलब गया। सारे हॉलोस्फीयर्स हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में गिनेंगे, वॉल्यूम चार्ज में नहीं गिनेंगे। राइट। ठीक है, तो ये तुमको हो गया सरफेस, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर। अभी मान लो शीट हो गया। शीट मतलब जिस पेपर पे तुम लिख रहे हो, ये ये जो शीट हो गया, ये तुम जिस पेपर पे लिख रहे हो, तो इस पूरे सरफेस पे चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसको भी हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बोलेंगे। इसका भी थिकनेस है, रिमेंबर थिकनेस है, बट थिकनेस इज वेरी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ द गिवन सरफेस। लैमिना जैसा ना सर? क्या? लैमिना जैसा ना सर? लैमिना, राइट, प्लेन लैमिना। तो देखना वो
समझ में आता है? तो यहाँ पे चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ऑन द सरफेस। मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव होगा, नहीं, but positive is very common. We always represent anything, any charge by positive, so it's a very common nomenclature, so that's why I'm taking positive. Clear है सबको? हाँ फिर यहाँ पे आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, we represent by sigma. Sigma will be total charge by area, total area. This is surface charge density. ठीक है? ये जैसे इस केस में क्या होगा, सिग्मा बताओ, इस केस में सिग्मा क्या हो जाएगा? Q/πr²। 2/2 पाई आर, Q by pi सर r, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर। Q by area of the disk, pi r square. आरुषि, इस केस में क्या होगा सिग्मा? हॉलो स्फीयर में Q/4 pi r square. राइट, Q by 4 pi r square, surface area of the sphere. सम्यक, इस केस में सिग्मा क्या हो जाएगा? चार्ज Q है, एरिया A है इसका, Q/A। Q by A। तो देखना एवरीवन, तो देखना ये काफी सिंपल है फाइंड करना। सेम इसी तरह तुम्हारा क्या आ जाएगा? सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम लोग आगे जाएंगे फिर से मैकेनिक्स में, जब हम लोग वापस आएंगे, सेंटर ऑफ मास चैप्टर हो गया, रोटेशनल हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, तो वहां पे सिर्फ तुमको ये चेंज होके क्या हो जाएगा? सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस मास वहां पे आ जाएगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डेंसिटी उसके लिए आ जाएगा सिग्मा बाई मास बाई एरिया। देखो ये तो ये सिंबल सबको ध्यान रखना है, लैम्डा, सिग्मा, ये सिंबल हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। हम लोग बार बार आगे मैं ये बताऊंगा नहीं कि सिग्मा इसके लिए है, लैम्डा इसके लिए है, वो नहीं। ठीक है? हाँ सर। The last type of distribution is volume charge distribution. Third, C is volume charge distribution. Like क्रिकेट बॉल हो गया, क्रिकेट बॉल में अंदर में भी मास का अंदर में भी कोई खाली जगह नहीं होता, सॉलिड स्फीयर हो गया। तो ये काफी कॉमन शेप है जो फिजिक्स में, देखो यही जो मैंने शेप ड्रॉ किया है, 3 लीनियर में, यहाँ पे 3, और तो यही 7-8 शेप कॉमन है तुमको, इसके बाद का कोई और शेप नहीं आता। एक कोन आता है, तो कोन इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ सिलेंडर बेसिकली। Yes, sir। ठीक है? तो फिर यहाँ पे
तो यहाँ पे देखो सॉलिड स्फीयर मीन्स पूरी जगह ये है। तो यहाँ पे लिखना सॉलिड स्फीयर में भी क्या क्या लिखना है, नॉन कंडक्टिंग दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर कंडक्टिंग होगा तो वो कुछ और हो जाता है फिर। सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग, लाइक जैसे तुमने क्रिकेट बॉल ले लिया तो क्रिकेट बॉल इज नॉन कंडक्टिंग। वही तुम अगर सॉलिड स्फीयर ऑफ आयरन तुम अगर लेते हो एनी मेटल, तो मेटल विल बिकम कंडक्टिंग। तो यहाँ पे चार्ज थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है ये। फिर सॉलिड सिलेंडर हो गया, मान लो सॉलिड सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग। फिर यहाँ भी सॉलिड सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग, तो यहाँ भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू। सर आपका आवाज अटक रहा है। नेटवर्क इशू होगा, मैं तो अच्छे से बोल रहा हूँ, नेटवर्क भी होगा फिर क्लियर फिर आ जाएगा। बीच बीच में नेटवर्क डाउन होता है फिर हो जाता है सही। हो रहा है सबको, दिख रहा है? सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग। आ रही है आवाज मेरी? सर Yes, sir. तो Yes. यहाँ पे भी तो थ्रू आउट वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मतलब ये हो गया थ्रू आउट वॉल्यूम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यही दो शेप कॉमन है, ठीक है। सॉलिड कोन भी आता है, ठीक है, सॉलिड कोन भी हो सकता है। तो दैट इज बेसिकली द शेप ऑफ जो अपना सिलेंडर है वही हो गया वो सॉलिड कोन नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान देना। कंडक्टिंग होगा तो वो फिर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन फिर नहीं रहेगा। तो फिर यहाँ पे इसका, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी we represent by rho। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी we represent by rho। तो रो क्या हो जाएगा, तो चार्ज बाय वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, लेट्स से अगर कंडक्टिंग हुआ, लेट्स से सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर इज एक्ट्स लाइक अ हॉलो स्फीयर। ये लिख लेना, सॉलिड जो भी कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग
जो भी होगा दे एक्ट लाइक अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे होगा, तो इट एक्ट्स लाइक अ हॉलो स्फीयर। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में सारे चार्जेस इस पे सरफेस पे सेटल हो जाते हैं क्या? राइट। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो या सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर हो या सॉलिड कंडक्टिंग कुछ भी हो, सॉलिड कंडक्टिंग होगा तो उसमें सारे चार्जेस सरफेस पे आ जाते हैं। क्यों आते हैं वो आगे का टॉपिक है, ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रखना है। तो वहां पे लिख लेना कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर इज सेम एज हॉलो स्फीयर, means charge is distributed on the surface. Second case, ओके। तो फिर इस केस में इंद्रानी आ रही है आवाज? तन्मय, तो इस केस में लेट्स से सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? Q/4/3 pi r cube. तो Q/4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ऐसे जब हम लोग वापस मैकेनिक्स में आएंगे तो वहां पे तुमको आ जाएगा क्या, वहां पे तुमको आ जाएगा वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डेंसिटी। देखो, in every case mass is always distributed in the volume, but for sake of calculation we have divided into linear, we have divided into surface, we have divided into volume। ये हमेशा ध्यान में रखना है, मास और चार्ज हमेशा वॉल्यूम में ही होता है, but for calculation purpose we can assume like this। So I think step 1 is clear to all of you। Yes, sir. Step 1 is clear all of you? Yes, sir. तो सेकेंड स्टेप लिखो फिर, स्टेप 2। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2, divide the charge distribution, divide the charge distribution into infinitesimal charges, divide the charge distribution into infinitesimal charge dq, charge dq, each of which will act as a tiny point charge।
each of which will act Sir, can you repeat? just a minute. Divide the charge distribution each of which will act as a tiny point charge. Each of which act as a tiny point charge. Because अपने पास जो फॉर्मूला है that is because of a point charge. यहाँ पे क्या है, यहाँ पास कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, तो कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने स्मॉल 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 पॉइंट चार्जेस में डिस्ट्रीब्यूट, सो स्मॉल कि इट इज इनफिनिटेसिमल. और कैलकुलस में हम लोग वही करते हैं, कैलकुलस में हम लोग इनफिनिटेसिमल वैल्यू ही लेते हैं और इनफिनिटेसिमल वैल्यू को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी. तो इट इज कॉल्ड, तो टोटल चार्ज क्यू है, उस चार्ज क्यू को मैंने स्मॉल इनफिनिटेसिमल चार्ज लिया तो इट विल बिकम डी क्यू. एंड दिस डी क्यू टेकन एज अ पॉइंट चार्ज बिकॉज अपने पास फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के कारण ही है. के क्यू बाई आर स्क्वायर इज द बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज. क्लियर है एवरीवन? So that's why we are converting a continuous object into a point charge because we have a formula to point charge for electric field. So that is our case into point charge, infinitesimal charge. तो जैसे मैं क्या किया, अभी मैंने जैसे वायर ले लिया, तो वायर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन टोटल क्या है, क्यू है. या फिर मैंने प्लेट डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज क्यू है, पूरे एरिया में चार्ज है. मैंने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मैंने ले लिया, ये पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, तो ये तुमको क्या डिस्क, ये तुमको हो गया सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. ठीक है, तो देखो इसमें पूरे जगह चार्ज है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्मॉल चार्ज मैंने ले लिया, ये टोटल क्यू है, तो इस स्मॉल चार्ज को मैंने कहा डी क्यू. यहाँ पे मैंने एक स्मॉल चार्ज मैंने ले लिया, इसको कहा मैंने डी क्यू. यहाँ पे मैंने स्मॉल चार्ज मैंने ले लिया, इसको कहा मैंने डी क्यू. टोटल चार्ज क्यू है, उसमें मैंने काफी स्मॉल चार्ज लिया, कितना स्मॉल, टेंडिंग टू जीरो, इनफिनिटेसिमल स्मॉल. So that is means tending to zero. So that we are calling as a dq. तो step 2 ये हो गया, हम लोगों ने क्या किया, and this dq can be assumed as a point charge. This dq can be assumed as a point charge. Sir, that means उसकी length will be tending to zero, ना? हाँ, अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो लेंथ होगा, अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो एरिया होगा, स्मॉल एरिया, दैट एरिया टेंडिंग टू जीरो. अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है
तो स्मॉल वॉल्यूम होगा, दैट स्मॉल वॉल्यूम विल बी टेंडिंग टू जीरो. Okay, sir. Not the charge, na? क्योंकि चार्ज विल स्टे वेयर, चार्ज विल स्टे ऑन सम सरफेस. तो सरफेस का अगर डायमेंशन टेंडिंग टू जीरो है तो चार्ज भी ऑटोमेटिकली इट विल बी टेंडिंग टू जीरो. Okay, yes, sir. Charge and mass, they are fundamental property of any matter. तो अगर मैंने स्मॉल सरफेस ले लिया था, स्मॉल सरफेस पे स्मॉल चार्ज, एंड उसी चार्ज को हम लोग dq बोल रहे हैं. dq क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज that dq can act as a point charge and we have a electric field formula due to point charge. तो थोड़ा सा नेटवर्क अभी स्लो है, लेकिन ठीक है, ठीक हो जाएगा. Okay, so small charge will have a small surface will have a small charge. I hope ये clear है सबको. Yes, sir. तो यहाँ पे charge is not tending to zero because charge will stay on a some surface. So that dimension of surface is going to tend to zero. अगर linear charge distribution है तो मैं काफी small length लूंगा because charge is distributed along the length. I'll take a small length. The small length will be tending to zero. अगर surface charge distribution है तो I'll be taking a small area. That small area will be tending to zero. और volume charge distribution है so I'll be taking small volume. That volume will be tending to zero. So depending upon the charge distribution, you have to take that. Okay. Step 3. Step 3. The amount of charge dq, amount of charge dq has to be calculated. Amount of charge dq has to be calculated according to the distribution of charge we have found in the step 1. लिखा तुमने? क्या सर? ओके. तो नाउ जैसे मान लो कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? dq विल बी व्हाट? अपने को लीनियर चार्ज डेंसिटी ये होगा, मालूम होगा, इनटू लेंथ dl. बिकॉज हम लोग स्मॉल लेंथ लेंगे, स्मॉल लेंथ पे चार्ज स्मॉल रहेगा, तो इट इज फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. देखो तो ये लीनियर चार्ज ये हो जाएगा. देखो तो अगर सरफेस है तो dq विल बी व्हाट? इट विल बी सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू dA. एरिया लेंगे वहां पे हम लोग, स्मॉल एरिया विल बी टेकिंग. ये तुमको मैथमेटिकल ये तुमको ये लेना है. अगर
सॉलिड स्फीयर है तो डी क्यू विल बी, अगर वॉल्यूम में है तो रो इंटू डीवी, डीवी इज द स्मॉल वॉल्यूम, तो यहां से तुमको डी क्यू आ जाएगा। देखो ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। ओके एवरीवन, देखो तो हेलो, ओके। Yes, sir. Yes, sir. स्टेप 4, स्टेप 4 लिखो। Draw at a point P. Draw at a point capital P. DE vector. Produced by the point charge DQ. Produced by the point charge DQ. जैसे अभी चार्ज Q के कारण क्या था, अगर मान लो जैसे चार्ज Q था, पॉइंट चार्ज, तो ड्यू टू दैट एट अ पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड वाज E, K Q by R स्क्वायर। अगर वही चार्ज यहाँ पे DQ हो जाए तो ड्यू टू DQ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी स्मॉल, TE। यही हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, DE हम लोग लिख रहे हैं। DE is the electric field due to a point charge DQ, and its magnitude will be how much? K DQ by R square। देखो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। स्मॉल चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्मॉल, पर चार्ज Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लार्ज। ड्यू टू स्मॉल चार्ज यू विल हैव अ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्मॉल Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड मींस DE, वेरी स्मॉल। It is magnitude and electric field is a vector quantity. So you have to add all this in a vectorial form. Yes, sir. तो वो अभी इसके बाद तुमको टोटली मैथमेटिकल है कि तुम कैसे ऐड करते हो, उस पे हम लोग आते हैं। तो स्टेप 5 लिखो, लास्ट स्टेप।
step 5. Take the component of DE. Take the component of DE in two mutually perpendicular direction. Into two mutually perpendicular direction, if possible, and integrate them to find the electric field in two mutually perpendicular direction respectively. सर टू फाइंड के बाद क्या था? वैष्णवी रीड करो. सर पूरा या 2 पॉइंट से आगे? पूरा. Take the component of DE in two mutually perpendicular direction, if possible, and integrate them to find the electric field in two mutually perpendicular direction respectively. तो ये जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं 5 स्टेप्स, ये शुरू के लिए ठीक है. इसके बाद यू विल बी सो यूज्ड टू इट कि तुमको हर एक स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी. हाँ, शुरुआत करने के लिए ये स्टेप यूजफुल है, लेकिन उसके बाद वंस यू आर accustomed with these methods, then it won't be that much required to remember all these steps. ये करना है नहीं, कोई जरूरत नहीं है. लेकिन इनिशियली से हम लोग फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन का यूज फिजिक्स में कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, देखो तो यहाँ तक कोई डाउट है बताओ फिर. देन विल गो फॉर द क्वेश्चन. नाउ इसका एप्लीकेशन हम लोग अलग अलग शेप के लिए करेंगे जो अपने कोर्स में. नो डाउट सर. किसी को डाउट हो तो बताओ. ऋषि, दिव्यांशी, गार्गी, No, sir. No, sir, no doubt. इंद्रानी, ईशा, No, sir. केदार, No, वैद, sir. नो डाउट सर. नीव, नहीं सर. सच्ची, No doubt, sir. सम्यक, तन्मय, तन्वी, नहीं है doubt. No doubt. वेद, यामिनी. तुम लेट आई यामिनी, लेट ज्वाइन की. ठीक है. Now we'll take few standard shapes and we'll try to apply the steps that we have learned. ठीक है. देखो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी सिंपल. क्वेश्चन लिखो. क्या मैं डायरेक्टली मैं फिगर में ड्रॉ में करता हूँ. ठीक है. वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक. देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन रॉड जो मैंने लिया था, का लेंथ L है. ठीक है. इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन, लैम्डा इज गिवन. तो आई थिंक यहाँ से नाम से भी क्लियर है, इट्स द
रॉड है तो रॉड पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर होगा, एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P along the rod itself, along the length of the rod itself. This point P is at a distance A from end A, B. ये A end, ये B end. देखो ये फिगर मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियरली है, डॉट है ए बी, बी एंड से एट अ डिस्टेंस ए पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा, और अगर दिया भी नहीं होता तब भी तुम लिख सकते थे, बिकॉज इट इज अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ, तो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। सर लैम्बडा कितना है? लैम्डा है, लैम्डा दिया हुआ है। वैल्यू नहीं दिया क्या? लैम्डा इसी फॉर्म में दिया हुआ है, लैम्डा इज इन अ इक्वेशन के फॉर्म में है। और k लैम्डा dl/r²। अच्छा, तुमने आंसर भी कहा। ओके, देखो ये क्वेश्चन है, ऑल ऑफ यू क्वेश्चन क्लियर है सबको? देखो तो यस सर। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में करता हूँ, तब ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग ये तो कंफर्म है कि इट्स अ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट, तो वी कैन नॉट अप्लाई k/r²। हम लोग ये लिख नहीं सकते, ये किसके लिए एप्लीकेबल? फॉर अ पॉइंट चार्ज। यहाँ पे क्या है, इट इज अ रॉड के अलोंग चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली, वी कैन नॉट राइट फॉर दिस। ठीक है, तो व्हाट विल डू, फर्स्ट स्टेप 1 क्या था, आइडेंटिफाई द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑलरेडी ये दिया हुआ है, इट इज अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्डा दिया हुआ है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड, तुमको डीक्यू लेंथ, देखो स्टेप 2 में तुमको क्या था, स्टेप 2 वाज कि डिवाइड द चार्ज इनटू डीक्यू। देखो अभी यहाँ से तुम्हारा मैथ शुरू होता है। टोटल चार्ज क्यू है पूरे लेंथ पे, और टोटल चार्ज कितना होगा, क्यू विल बी लैम्डा इंटू एल। देखो तो ये होगा टोटल चार्ज ऑन द रॉड, लैम्डा इंटू लेंथ इज द टोटल चार्ज ऑन द रॉड। यस सर। यस सर। देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स आता है, अपने को डीक्यू चार्ज लेना है। तो लेट्स सी, मैंने इस एंड से यहाँ पे मैंने एक ले लिया, ये लेंथ मैंने लेट्स से यहाँ से एंड ए से x डिस्टेंस अवे मैंने स्मॉल लेंथ लिया dx, x में इंक्रीमेंट dx। ये मैथमेटिकल वे है सॉल्व करने का, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। मैंने अगर x लिया है, सबको दिख रहा है, तो x में इंक्रीमेंट dx। अगर कोई यहाँ पे लेंथ अगर y लेता तो y में इंक्रीमेंट dy, z में इंक्रीमेंट dz, ऐसे हम लोग लेते हैं। ओके एवरीवन? So what is increment? क्या है डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इंक्रीमेंट क्या होता है, बताओ तो। अगर तुम किसी कंपनी में जॉब करती हो, अगर तुम्हारा सैलरी मान लो 10 रुपीज है एंड तुमको इंक्रीमेंट मिला 2 रुपीज का, तो क्या होता है? So raise. रेज, इंक्रीज। तो x में मैंने रेज लिया dx, यहां से एंड ए से एट अ डिस्टेंस x मैंने स्मॉल लेंथ लिया dx। स्मॉल लेंथ हम लोग क्यों कर रहे हैं, ले रहे हैं? बिकॉज इट्स अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो अपने को dq निकालना है। आई थिंक सब स्टेप 3 ये याद करो, dq इज हाउ मच, इट इज लैम्डा इंटू dl, सही है dq। तो यहाँ पे dl के बदले मैंने लिखा लैम्डा इंटू dx लिखा मैंने, तो दैट बिकम्स आवर dq।
मैंने स्मॉल लेंथ लिया है dx। और वो ए से डिस्टेंस dx है क्या? हाँ, ए एंड से ए से, हाँ, ए से डिस्टेंस x में x डिस्टेंस अवे मैंने स्मॉल लेंथ लिया है dx। यस सर। क्लियर है एवरीवन? देखो इस पे और प्रैक्टिस हम लोग एक्चुअली मैं इसको ये करता हूँ कि 5 टाइम्स सबको लिखने को मैं बोलता हूँ, तो इसीलिए देखो अभी फिर बाद में एक्सप्लेन करूंगा फिर से। तो dq देखो, तो यहाँ पे चार्ज हो गया dq, ठीक है एवरीवन। ड्यू टू ये तुमको क्या हो गया, इट इज अ पॉइंट चार्ज। ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस तुमको r हो गया। देखो ये यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ड्यू टू दिस चार्ज dq, इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको क्या हो गया, d विल बी k dq बाई r स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीट्यूड। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, क्या होगा बताओ? इट इज पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, ड्यू टू दिस चार्ज Away. p पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली रेडियली अवे। अवे होगा। एवरीवन देखो तो, देखना सब, रेडियली अवे, ठीक है। dq का तुम पहले लिख दो, k dq इज हाउ मच, तो लैम्डा इंटू dx बाई r स्क्वायर। देखो ये अभी देखो यहाँ पे अभी जो चार्ज, ठीक है, जो चार्ज यहाँ पे होगा इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रेडियली अवे होगा। जो चार्ज यहाँ पे होगा इसके कारण भी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली अवे। जो चार्ज यहाँ पे होगा उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली अवे। देखो तो मीन्स इस रॉड पे तुम कोई भी पॉइंट ले लो, ड्यू टू ऑल पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज रेडियली अवे। सर Means all electric fields are in same direction. देखना ये, all electric fields are in same direction. Electric field is a vector quantity. अगर सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं, तो that is as good as a scalar quantity. You can add them scalarly. सबको देखो ये वेक्टर में ही आया होगा सबको। अगर सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं, you can treat them as a scalar quantity. You can add them scalarly. यस सर। ये सबको आ रहा है समझ में ये पॉइंट एवरीवन? यस सर। दिव्यांशी? Yes, sir. Due to all charges on a rod AB, electric field at point is radially away. So all electric field is in same direction. और कोई भी वेक्टर, सारे वेक्टर का डायरेक्शन एक ही हो, तो it is as good as a scalar quantity. You can add them scalarly. तुमको वहां पे फिर कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। कंपोनेंट कब लेते हैं कि जब ड्यू टू एक वेक्टर मान लो ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, देन वी टेक द कंपोनेंट। लेकिन अगर सारे वेक्टर का डायरेक्शन एक ही है तो उस केस में कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन रॉड ए बी इज रेडियली अवे एट पॉइंट P. वैष्णवी ओके? यस सर। सची? Yes, sir. एवरीवन देखना ये, हाँ ईशा? Yes, sir. और मैं लास्ट में एक अच्छी बात भी मैं बताऊंगा लास्ट में, लेकिन अभी नहीं। अभी तो एटलीस्ट अपने को लर्न करना है कैसे हम लोग मैथ्स फिजिक्स में यूज कर रहे हैं, ये सीखना है, ठीक है। और आसान है, अगर तुम का ध्यान दो, मैंने जो जो स्टेप्स बताए वो शुरू में फॉलो करो, इट विल बी इजी। और ये सिर्फ यहीं पे यूजफुल नहीं है एवरीवन, हाँ हम लोग, मैंने बोला 6 बार हम लोग इसको यूज करेंगे, सेम शेप, सब कुछ मेथड यही रहने वाला है। एक तो यहाँ पे यूज करें इलेक्ट्रोस्टैटिक में, फिर मैग्नेटिज्म में 2 हो गए, फिर थर्ड हम लोग
सेंटर ऑफ मास में, फोर्थ रोटेशनल में, फिफ्थ ग्रेविटेशन में, एंड सिक्स्थ अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म में, 12th स्टैंडर्ड में। तो 6 बार सेम शेप्स रिपीट होंगे, सेम टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। तो फिजिक्स में एक अच्छी बात यह है कि शेप फिक्स है, अगर तुमने स्टेप्स भी याद रखे ना तो हो जाता है, फिर तुमको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। अप टू एडवांस आई एम सेइंग ना, अप टू एडवांस इट इज सेम शेप, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक ओके सबको। तो यहाँ पे डी वेक्टर क्या है तुम्हारा, सब एक ही डायरेक्शन है, तो यहाँ पे कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो जो स्टेप आई थिंक कौन सा था, 5th था ना स्टेप, तो स्टेप 5 की यहाँ पे जरूरत नहीं है। स्टेप 1 2 3 4 है ना, स्टेप 5 की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बिकॉज ड्यू टू ऑल चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही है, रेडियली अवे टुवर्ड्स राइट। सब कोई है ना, तो नहीं गए ना, आरुषि जगी हो ना, Yes, sir. नहीं तो लोरी तक टाइप कोई सुन रहा होगा तो सो रहा होगा फिर। सम्यक जगे हो ना, हाँ सर जाएगा। तन्मय हाँ सर जाग रहा जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। हाँ, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? देखो नहीं सर। नो सर। तो अभी इसके बाद क्या करना है, तो ऐसे सारे स्मॉल 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 चार्जेस को ऐड करना है। ऐड करने के लिए देखो यहाँ पे dx है, तो ऐड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंबल, सबने देखा है इंटीग्रेशन का सिंबल, देखो ये यूज हम लोग करते हैं। और d का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हो गया अपना काम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू k इज अ कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, लैम्डा इज कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, dx इज नॉट कांस्टेंट, ये अंदर रहेगा, r इज आल्सो नॉट कांस्टेंट, ये अंदर रहेगा। बिकॉज देखो r चेंज होगा, जो चार्ज a पे होगा उसके लिए r अलग होगा, जो चार्ज बीच में होगा उसके लिए r अलग होगा, जो चार्ज बीच में होगा उसके लिए r अलग होगा। तो r इज नॉट कांस्टेंट, तो वो अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा इंटीग्रेशन के। अभी इसके बाद टोटली मैथ्स है, यहां तक फिजिक्स है, इसके बाद मैथ्स है, तुमको अभी मैथ्स यूज करना है। ठीक है एवरीवन, फिजिक्स हाँ इतना सर। ही था, अभी मैथ्स है। देखो मैथ्स हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो मैथ्स में देखो ऊपर dx है, नीचे r है, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, सबको याद होगा कि हम हाँ लोग सर। इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या होता है, जो ऊपर में वही नीचे में आना चाहिए इस फॉर्म में, या फिर dx बाई एक्स प्लस ए स्क्वायर, कुछ इस तरह आना चाहिए, जो ऊपर में वही नीचे में। यहाँ पे ऊपर में x है, नीचे में r है, तो हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अभी अपने को मैथमेटिकल स्किल यूज करना है। क्या स्किल, तो देखो यहाँ से r का वैल्यू क्या आ जाएगा, r विल बी प्लस ए l माइनस एक्स। प्लस a माइनस एक्स, देखो तो ये आ जाएगा। हाँ सर। तो इसको लिख दो फिर, k लैम्डा dx बाई l प्लस a माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन। देखो यहाँ तक। अभी देखो ऊपर में l और a कांस्टेंट है, ऊपर में d के साथ x, यहाँ नीचे भी एक, हाँ इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। कैसे करना है, दैट इज मैथमेटिकल स्किल, वही हम लोग सीखने वाले हैं। और ज्यादा इसमें डिफिकल्ट वाले यहाँ पे नहीं है, इजी वाले हैं एवरीवन। अभी हम लोग इसमें फिर लिमिट्स रखते हैं, लिमिट बी पुट अकॉर्डिंग टू x। देखो यहाँ पे अपने को पूरा रॉड कवर करना है, तो व्हेन x इज 0 आई एम एट a, x धीरे धीरे इंक्रीज होते होते हम लोग l लेंथ तक आ गए x, तो अब एंड b पे आ गए, तो लिमिट क्या हो गया 0 टू l। देखो तो एवरीवन, 0 टू l तुमने इस
इस एंड से लेके यहाँ तक आ गए, तुमको सारा रॉड कवर हो गया, तो अभी इसके कारण इंटीग्रेट कर दो, अपना काम हो गया। देखो तो आर को मैंने किया कन्वर्ट, लिमिट्स मैंने रखे, उसके बाद इंटीग्रेशन, ये सब मैथमेटिकल स्किल है। ओके, अभी इसका इंटीग्रेशन करो, ठीक है, मैथ्स है, हम लोगों ने ऑलरेडी किया है, सीखा हम लोगों ने। एंड लेट्स हैव अ ब्रेक, ब्रेक के बाद विल सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, तब तक तुम लोग खुद से ट्राई करो। 5 मिनट्स का ब्रेक है, विल मीट एट 6:30। ठीक है एवरीवन, विल मीट एट 6:30। चलो फिर, हैव अ ब्रेक।
यस, आ गया। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर इस फॉर्म में होता तो हम लोग सॉल्व कर सकते थे, है ना, dx बाई एक्स स्क्वायर। तो क्या होता फिर, हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे x रेज टू माइनस टू डी एक्स, तो x रेज टू n के फॉर्म का फॉर्मूला यूज कर सकते थे। इसके लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं एवरीवन। तो हम लोग इस होल को तुम x मान लो, वो फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, याद है सबको, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अपने को इसका इंटीग्रेशन निकालना है, लेट्स से इट इज i। तो i निकालना है अपने को, तो जस्ट मैं एक मेथड में बता रहा हूँ जो अपने लिए फिजिक्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है जो अपने को यूज करना है। तो लेट्स से l प्लस a माइनस एक्स इज t, मैंने t अज्यूम कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, dx बाई टी स्क्वायर इंटीग्रेशन। ओके, लेकिन ऊपर में dx है नीचे t है, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, अपने को ऊपर में भी dt लेके आना होगा, देन वी कैन डू द इंटीग्रेशन। सर वो आई किधर से आया? इसको मैंने i अज्यूम किया, इसको मैंने i लिखा, i जस्ट रिप्रेजेंटेशन, सर नोटेशन। तो dx बाई इसको मैंने i लिखा, इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन। हम लोग इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं 0 टू l। इसको मैंने i लिखा, इस होल इंटीग्रेशन को मैंने i को मैं अलग से फाइंड कर रहा हूं। तो जो फिजिक्स में यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं, ऊपर में dx है नीचे में t है, तो इंटीग्रेशन ये नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t, l इज कांस्टेंट, इसका dl बाई dt प्लस da बाई dt माइनस dx बाई dt इज इक्वल टू dt बाई dt। देखो ये l इज कांस्टेंट, इसका 0, a इज कांस्टेंट 0, इसका तुमको क्या माइनस dx बाई dt, इसका हो गया 1, तो यहाँ से dx इक्वल टू माइनस dt। देखो ये वैल्यू को यहाँ पे रख दो, i इक्वल टू माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर। अभी इसका इंटीग्रेशन होगा t रेज टू माइनस टू डी टी। देखो तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, चलो t raised to minus 1 upon minus 1, जो हो जाएगा -1 upon t। तो x रेज टू n के फॉर्म का है, तो t रेज टू माइनस टू प्लस वन बाई माइनस टू प्लस वन, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 बाई टी। देखो ये, तो i इक्वल टू 1 बाई टी मीन्स t तुमको ये हो गया 1 बाई एल प्लस ए माइनस एक्स। देखो ये हो गया इंटीग्रेशन। ये वैल्यू को यहाँ पे रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के लैम्डा 1 बाई एल प्लस ए माइनस एक्स। यहाँ पे अभी लिमिट है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। देखो ये लिख लो ये पहले सब। सर आप इसे एक्सप्लेन करो ना, कुछ समझे ही नहीं।
तुमने ध्यान ही नहीं दिया होगा। इंटीग्रेशन का पार्ट क्या हुआ वही समझा नहीं। मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो इसको मैंने अलग से मैंने यहाँ पे लिखा हाँ मैंने। वो और जब भी फिजिक्स में तुमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो सब्स्टिट्यूशन इज द मेथड जो हम लोग यूज करते हैं। एवरीवन का ध्यान देना फिर से, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यूज करते हैं, मींस वी सब्स्टिट्यूट समथिंग। जैसे l प्लस a माइनस एक्स को मैंने t अज्यूम किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, dx बाई टी स्क्वायर हो गया। यस लेकिन अभी ये इसका इंटीग्रेशन ये होगा नहीं, बिकॉज नीचे में t है, ऊपर में x है, तो ये यस इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो अभी देखो, तो यहाँ भी अपने को dt लेके आना होगा यहाँ पे। तो उसके लिए हाँ मैंने क्या किया, इसको मैंने विथ रिस्पेक्ट टू t इसको मैंने डिफरेंशिएट किया। जैसे इसको मैंने किया ऐसे dy dt, यहाँ भी dt बाई dt, मैंने बोथ साइड मैंने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। सबको याद होगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज डन विथ रेस्पेक्ट टू सम वेरिएबल। तो मैंने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। और k लैम्डा बाय l। ठीक है, जस्ट वेट, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वेट करो अभी, ठीक है। ये हाँ सर। तो t के रेस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट किया। इसको क्यों किया, बिकॉज अपने को ऊपर में dt चाहिए, इसलिए, अदरवाइज ये इंटीग्रेशन नहीं होगा। यस dx को अपने को dt से रिप्रेजेंट करना है, इसलिए। तो यहाँ पे ये सबको होगा याद कि ये अंदर गया तो dl बाई dt हो गया, फिर da बाई dt माइनस dx बाई dt, और इसका हो गया dt बाई dt। l इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। यस a का डिफरेंशिएशन होता है 0, a इज कांस्टेंट, और ये हो गया dx बाई dt इक्वल टू ये हो गया 1। तो यहां से dx इज माइनस ऑफ dt। देखो यहाँ पे dx के बदले मैंने माइनस dt मैंने यहाँ पे रख दिया। अभी इसका इंटीग्रेशन होगा, देखो ये t रेज टू माइनस 2। यस समझ गया। तो यहां से फिर इसका इंटीग्रेशन हो गया 1 बाई टी। तो t मैंने अज्यूम किया था कितना, l प्लस ए माइनस एक्स इज टी, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया। तो इंटीग्रेशन आई जो ये इसका ये हो गया, और इसमें लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट l है। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, x चेंज हो रहा है, देखना तो सब एवरीवन। यस सर। अभी इसके बाद क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज के लैम्डा। पहले हम x की जगह l रखेंगे, तो 1 बाई एल प्लस ए माइनस एल, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट l प्लस ए माइनस 0। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम के लैम्डा। यहां से तुम सॉल्व करोगे तो ये एल एल कैंसल, तो तुमको हो जाएगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई एल प्लस ए। if you simplify k lambda l by l plus a into a, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया, इट इज रेडियली अवे। ये हो गया मैग्नीट्यूड, दिस इज रेडियली अवे।
ओके यस सर। Yes, sir. सर ये जो फाइनल वैल्यू आई है ये हमें एज अ फॉर्मूला याद रखनी है या सिर्फ स्टेप्स याद रखने हैं? वही मैं लास्ट में मैंने कहा ना कि मैं एक अच्छी बात लास्ट में बताऊंगा। तो अच्छी बात यही है कि तुमको एज अ फॉर्मूला याद रखना है, स्टेप्स याद नहीं रखा तो चलेगा, तुमको फाइनल फॉर्मूला याद है, सारे क्वेश्चन सॉल्व होना। एडवांस के लिए तुमको स्टेप्स भी तुमको मालूम होने चाहिए फॉर एडवांस। बाकी जेई मेन, नीट, सीईटी और भी जितने भी एग्जाम है, वीआईटी, मणिपाल, जितने भी एग्जाम है इंडिया के, सिर्फ फाइनल रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट। अगर किसी को ये स्टेप्स नहीं समझना है, लगता है कि अरे क्या भानगढ़ चालू है, छोड़ दो, सिर्फ फाइनल स्टेप्स ध्यान रखो, फाइनल रिजल्ट ध्यान रखना है, सारे आंसर आ जाएंगे। तो ये अच्छी बात है ना तन्मय? हाँ सर। हाँ, लेकिन एडवांस वालों के लिए, जो लोग एम कर रहे हैं, करेंगे, उनके लिए स्टेप्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ओके यस सर। और जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट हो वो लोग भी स्टेप्स अगर करते हैं तो उनके लिए इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। ठीक है, तो देखो लिख लिया सबने, तो फाइनली ये सब कुछ हटा दो एवरीवन, जिनको नहीं समझा है उनके लिए भी अच्छा है। फाइनली तुमको ये रिजल्ट ध्यान में रखना है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये सब हटा दो अभी। फाइनली तुमको ध्यान में क्या रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड at a point P along the length of rod. So that is electric field is K lambda L by L into L plus A. And you get magnitude, this is the direction. Positive charge है A into L plus है ना? हाँ A into L plus है ना? A into L plus A होगा सर वो। हाँ, A into L plus A. पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली अवे। अगर वही मान लो ये इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज होता तो अपोजिट फिर होता है, यहाँ पे इनवर्ड, मैग्नीट्यूड सेम रहता, डायरेक्शन इनवर्ड होता। ठीक है, तो देखो यही तुमको ध्यान में रखना है, पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली अवे, अगर नेगेटिव है तो इनवर्ड। ओके एवरीवन? यस सर। मेरा क्वेश्चन है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड किया था ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर स्क्वायर, के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये और ये डायमेंशनली करेक्ट है क्या? देखो तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये आया था और Yes, ये sir. ड्यू टू, तो ये चेक करो सब डायमेंशनली करेक्ट है क्या, क्योंकि ये तुमको हमेशा तुमको याद रखने में हेल्प करेगा। Yes, sir. Yes, sir. Correct. हाँ सर करेक्ट। तो देखो लैम्डा इंटू एल ये क्यू हो गया, और लेंथ इंटू लेंथ ये हो गया लेंथ स्क्वायर, तो करेक्ट है। तो कभी भी डायमेंशनली रॉन्ग अगर आंसर आता है तुम्हारा तो बी केयरफुल कि तुमने कुछ तो मिस्टेक किया है। फिर चाहे किसी भी शेप का हो, फाइनल आंसर उसी डायमेंशनल जो फॉर्म है इलेक्ट्रिक उसी में आएगा, ऐसा नहीं हो कुछ अलग तुम्हारा आंसर, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसको अगर कुछ लोग ऐसे भी लिख दे के लैम्डा इंटू एल बिकम्स टोटल चार्ज ऑन द रॉड बाई ए इंटू एल प्लस ए, इस तरह भी कोई कुछ लोग लिख सकते हैं। तो देखो फाइनली यही याद रखना, और मैं सबको बोलूंगा सिर्फ एडवांस वालों को छोड़ के बाकी सब, और जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट है बाकी लोग फाइनल रिजल्ट ध्यान रखो। मुझे आता है समझ में कि इट्स नॉट इंटरेस्टिंग फॉर ऑल, तो फाइनल आंसर ध्यान रखो कि उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एडवांस छोड़ के।
लेकिन इट्स माय ड्यूटी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। जिनको इंटरेस्ट आता है दे कैन गो फॉर इट, अदरवाइज लीव इट। फाइनली तो वही बोला कि जो अच्छी बात है कि फाइनल आंसर ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इसमें एक स्पेशल केस है, तो यहाँ पे लिखो केस 1। क्या है कि पॉइंट P इज वेरी फार फ्रॉम द रॉड। पॉइंट P is very far from the rod. Means what? कि A is much more than L। देखो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, जैसे ये रॉड हो गया, रॉड का लेंथ काफी, और पॉइंट P बहुत दूर है, कहीं तो यहाँ पे है P, ये डिस्टेंस A हो गया एक एंड से। देखो ये वेरी फार, ये लेंथ L हो गया, सर तो फिर एल को नेग्लिजिबल लेंगे क्या? राइट। तो देखो अगर ऐसा कोई केस हो कि अगर कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो बहुत दूर है, तो दैट चार्ज ऑब्जेक्ट कैन बी अज्यूम्ड एज अ पॉइंट चार्ज। सर तो फिर कूलम्स लॉ लगेगा ना? कूलम्स लॉ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो अपना क्या हो जाएगा KQ/A², ये आ जाएगा। हाँ सर। और यहाँ से अपने को ये प्रूफ करना है, आता है क्या, देखो ये, एंड दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। तो देखो यहाँ पे A is much more than L, तो L plus A can be written as A। देखो तो देख सकते हैं, तो यहां से तुमको क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी KQ/A into A, दैट इज KQ/A²। देखो ये आ गया, इट इज लाइक अ पॉइंट चार्ज। A is much greater than L, तो L plus A can be written as A approximation में। Yes, ठीक sir. है, यस सर। ठीक है। तो अगर लेंथ ऑफ रॉड इज वेरी स्मॉल as compared to the point, means the distance from rod, point distance from rod हो, तो it will act as a point charge, and due to point charge अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पता है KQ/R²। ओके एवरीवन, ओके यस सर। ठीक है। देखो इसके बाद और भी कुछ शेप्स हैं, तो उस शेप को मैं यहाँ पे प्रूव करूंगा नहीं, उसका मैं सिर्फ फाइनल रिजल्ट में लिखूंगा। उसका उसका जो प्रूफ है, जो पूरा इंटीग्रेशन पार्ट है, उसके लिए जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसमें मैंने किया हुआ है, तो वो सबको देखना है। जिनको इंटरेस्ट है, जिनको नहीं है वो छोड़ दो, जिनको लगता है कि ये मेरे एग्जाम में नहीं है आने वाला तो छोड़ दो, लेकिन एडवांस वालों को वो पूरा स्टेप्स देखना है, ठीक है।
तो अभी मैंने सिर्फ एक के लिए मैंने बताया क्या करना है, बाकी मैं सिर्फ फॉर्मूले लिखूंगा और उसका जो प्रूफ है उसके लिए मैं वीडियो शेयर मैं करूंगा। तो जिनको वो देखना है, जिनको उसमें डाउट्स होगा, वो अलग से मैं लेक्चर लूंगा, फिर उसमें फिर डाउट पूछ सकते हो। एंड मेनली एडवांस वाले को वो करना चाहिए। क्लियर है एवरीवन? ओके, तो क्विकली आई विल राइट द सम शेप्स एंड उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट, और वही ध्यान में रखना है। क्लियर है सबको? हेलो? यस Yes, sir. मेथड सेम होगा, इंटीग्रेशन का मेथड सेम है, वो मैं वीडियो में शेयर कर दूंगा, तो देख लेना। तो पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद वीडियो देखना कि क्या तुमने छोड़ दिया, तुम कैसे इंटीग्रेशन कर रहे थे, मैथ्स तुम कैसे यूज कर रहे थे, तो खुद से करना है। तो उसके बाद देखना वीडियो। देखो उसमें जो सेकंड शेप है, जैसे ये हो गया चार्ज रॉड, फिर से वही वायर। अभी क्या था उस केस में, पॉइंट P वाज अलोंग द लेंथ, अभी क्या है, पॉइंट P इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस A फ्रॉम हियर। देखो ये इस रॉड से A डिस्टेंस अवे है पॉइंट P, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव होगा तो जस्ट उल्टा फॉर्म, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट आ जाएगा, मैग्नीट्यूड वही रहने वाला है। तो ये शेप लिख लो तब कि वायर है एंड P जो है दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस A from the wire. Electric field due to finite wire or rod at a perpendicular distance A from the wire. Sir, can you please repeat? तन्मय रिपीट करो। Electric field from finite wire or rod at a perpendicular distance from a wire. At a perpendicular distance A from the wire. ये सेकेंड शेप है, ठीक है। देखो ना यहाँ पे फिगर है सामने, तो इसीलिए इसमें कुछ लिखने वाली बात नहीं है। देखो तो यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे तुम ये एक एंगल हो गया θ1 और इसके वायर के सेकेंड एंड से पॉइंट P इज मेकिंग एंगल θ2। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और ये सबको आई थिंक समझ में आना चाहिए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, इसको हम लोग बोलते हैं E परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू रॉड, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे, और एक होता है E पैरेलल, पैरेलल टू रॉड, E पैरेलल। देखो ये जिस साइड का लेंथ ज्यादा है उसके अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सबको सोचना है। डायरेक्शन तो एटलीस्ट सबको आना चाहिए, मीन्स क्वालिटेटिव पार्ट में भी तुम डायरेक्शन बता सकते हो, तो ये सबको सोचना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। तो अगर रॉड है तो यहाँ पे दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऐसे, उसको बोलते हैं ई परपेंडिकुलर, और एक होता है वायर के पैरेलल, उसको बोलते हैं ई पैरेलल। तो ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, लेकिन किधर होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां जिस साइड का लेंथ ज्यादा हो उसके अपोजिट होता है। ये सबको सोचना है सबको, और आई थिंक कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों ये होता है, ठीक है। जिस साइड का लेंथ ज्यादा है उसके अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक ई पैरेलल। दिस इज मींस रॉड का एक एंड एंगल θ1 फॉर्म कर रहा है, सेकेंड एंड θ2 विद द पॉइंट P। देखो ये इतना कुछ ड्रॉ किया है, इसका जो होता है फॉर्मूला K लैम्डा बाई A,
इंटू कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। देखो ये होता है फॉर्मूला। पैरेलल इज k लैम्डा बाई a साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, इसका मॉड ले लेना। मॉड मीन्स सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैंने डायरेक्शन शो किया है। देखो तो ये फॉर्मूला है, याद करना आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। cos थीटा 1 plus cos theta 1 theta 2 is the angle made by the two ends of the wire with point P, line joining with the point P. अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। Opposite. हाँ, तो एवरीवन ये लिख लेना अलग से, मैं नहीं लिख रहा, अलग से लिखना। इसका एप्लीकेशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी सिर्फ मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ। इस पे वीडियो में शेयर करूंगा, तो वीडियो में देखना कैसे प्रूफ किया हम लोगों ने, फिर समझेगा। सर फॉर द नेगेटिव चार्ज वो ई पैरेलल वहां पे ही रहेगा ना? नहीं, ये पहले उल्टा हो जाएगा, ऐसे डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा सब। अगर चार्ज है नेगेटिव तो सारे डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। यस सर। इसको क्वालिटेटिवली सबको सोचना है। I'll be talking in the next class on this part कि कैसे डायरेक्शन ऐसे है, और जो वीडियो अगर देखते हो तो वहां भी समझ में आएगा। Yes, I will share it. ठीक है एवरीवन, लिख लिया सबने? तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के कारण भी लिख लेना, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो लिख लेना वो अलग से। थर्ड केस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क। देखो ये पॉजिटिव चार्ज at the center of the arc। देखो ये आर्क है ये। अच्छा एक चीज और कि ये डायमेंशनली सही है क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? देखो तो डायमेंशनली Yes. सही है। यस, नहीं ना सर, वहां पे थीटा एंगल है ना। हाँ तो डायमेंशनली सही है क्या कि रॉन्ग है ये? सर सही है ना, थीटा पर साइन थीटा है सर, वैल्यू है क्रेश है। राइट, तो देखो डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन इज ऑलवेज रॉन्ग, ऐसा कभी नहीं होगा। डायमेंशन, ये कॉस थीटा ये कांस्टेंट है ना, इट्स डायमेंशन, इट्स यस अ सर। डायमेंशनलेस क्वांटिटी। के अपना होता क्या है के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना। देखो के हो गया, लैम्डा मतलब क्या होता है, चार्ज बाई लेंथ, यस सर। और यहाँ पे लेंथ है तो चार्ज इंटू लेंथ बाई के इंटू चार्ज इंटू लेंथ स्क्वायर। देखो यहाँ पे के इंटू लैम्डा मतलब हो गया चार्ज बाई लेंथ इंटू ए, तो ये दोनों मिलके आर स्क्वायर हो गया। यस सर। तो डायमेंशनली सही है, रॉन्ग नहीं है। cos theta sin theta they are dimensionless constant। तो डायमेंशनली रॉन्ग नहीं है एवरीवन, ठीक है।
थर्ड शेप ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर इन आर्क फॉर्म एट द सेंटर ऑफ द आर्क, यहाँ पे निकालना है पी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसका मिड पॉइंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस एंगल इज थीटा, ये भी थीटा, बोथ साइड, मतलब जो इसका सिमेट्रिकल लाइन होगा रेडियली अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज के लैम्डा बाई आर, आर इज द रेडियस, 2k lambda by r into sine theta. Theta is the half angle. देखना ये, theta is the half angle. Total angle is 2 theta. Theta is the half angle. ये हो गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इज रेडियली अवे, मीन्स जो सिमेट्रिकल लाइन है उस लाइन के डायरेक्शन में रेडियली अवे। ठीक है, थीटा इज द हाफ एंगल ऑफ द आर्क। इसमें और भी शेप्स हैं, तो दैट विल बी डूइंग द नेक्स्ट क्लास। देखो इतना ये फॉर्मूलेज ध्यान में रखना है, प्रूफ मैं शेयर करता हूँ तो देख लेना है सबको। ओके, ठीक है।